नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। इकोनॉमी के मोर्चे पर कई बड़ी खबरें हैं। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन में अब म्यूचुअल फंड भी होंगे शामिल। आईपीओ लाने से पहले कंपनियों को बताना होगा पहले किस वैल्यूएशन पर जुटाए हैं फंड। सेबी की बोर्ड बैठक में हुए बड़े फैसले। फिर बढ़ेगी आपकी ईएमआई। आरबीआई ने %0.5% महंगा किया कर्ज, ग्रोथ का अनुमान भी घटाया, लेकिन कहा देश की इकोनॉमी मजबूत। 16% क्रेडिट ग्रोथ को बताया पॉजिटिव सिग्नल। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी को बाजार की सलामी। शानदार तेजी के साथ बाजार में चौतरफा खरीदारी। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में उछाल। सेंसेक्स 1017, निफ्टी 276 पॉइंट चढ़कर बंद। गांधीनगर में पीएम मोदी ने दिखाई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी। अहमदाबाद तक वंदे भारत में पीएम मोदी का सफर। अहमदाबाद मेट्रो के पहले फेज का भी किया उद्घाटन। कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में मैदान में दो बड़े खिलाड़ी मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर ने किया नामांकन। झारखंड से कांग्रेस नेता केन त्रिपाठी ने भी भरा पर्चा। कल से 5G क्रांति की होगी शुरुआत। पीएम मोदी करेंगे लॉन्च। मेगा कार्यक्रम में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी समेत इंडस्ट्री के कई दिग्गज होंगे शामिल। 5G लॉन्च से पहले टेलीकॉम शेयरों में रौनक। और मर्सिडीज की पहली लग्जरी मेड इन इंडिया ईवी सेडान कार EQS लॉन्च। कीमत 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा। एक बार फुल चार्ज करने पर 857 किलोमीटर चलेगी। और इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन के दायरे में अब म्यूचुअल फंड भी आ जाएंगे। अब आईपीओ लाने से पहले किसी भी कंपनी को ये बताना होगा कि उसने पहले किस वैल्यूएशन पर फंड जुटाया है। आज सेबी की बोर्ड बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इस वक्त इन्हीं फैसलों पर सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। सीधे चलते हैं। That is therefore the equities, listed equities. Then we move on to which one did I finish? 30. Okay. So in the takeover regulations, we had been approached by the government to say that when there is a strategic divestment of PSUs, the process that the government has to follow is a much more transparent and much longer process than what happens when there is a private entity and a promoter divesting a private entity. On account of that, what happens is it gives the market an opportunity to pump up the price of that stock. And makes it very difficult now for the acquirer to actually make an open offer with a pumped up price, and therefore recognizing, so this is again consistent with our approach of a segmented approach. So we believe that yes, the open offer process is distinctly different for PSUs and distinctly different for private entities, and therefore this flexibility needs to be given for the public sector, where the volume weighted average market price for that 60 days trading days, that criteria for pricing must go, because it can and it is vulnerable to be a manipulated price. So we are removing that criteria because it is not relevant given the process that the government of India follows for strategic divestment. Next one is about inclusion of units of mutual funds under prohibition of insider trading. There was a certain ambiguity in our regulation about what is the way in which this is to be done, and we felt that given that this is now a very large asset class, a very significant amount of investor money is in this segment, it needs to be, all ambiguity needs to be removed, if any. We did not believe there was ambiguity, but the market felt there was ambiguity, so we felt that we needed to ensure that the market did not see any ambiguity in this, and therefore we have done this. But the nature of mutual funds being very different from listed entities, we have chosen to have a new chapter for this, so that
all the definitions and all the processes are very clear and clearly defined, so that again there's no ambiguity in what is required if it's a listed entity, what is required if it is a mutual fund. It's a separate chapter under prohibition of insider trading regulations. So in short, the purpose is to bring complete clarity on what constitutes insider trading in relation to mutual funds. Last one is really something that we hope will never happen, but in case it does, so it is merely a facilitation in law to ensure that there is a framework available with every clearing corporation as to, in the event that a winding down needs to be done, what is the method by which that will happen. Over to you. We'll take questions. Yeah, please. Good evening, ma'am. Just one question as far as the board meeting agenda is concerned, and the second one out of the board meeting agenda. There was also a proposal which was in discussion by the board when it came to cutting down timelines for buyback and open offer. What has been the stance on that one? Where does the discussion lie? And as far as the point outside the board meeting is concerned, you happened to mention very recently that you're looking at implementing the rule as the sort of mechanism on the secondary market side as well. How soon could that happen? What's the way forward as far as that particular thing is concerned? So, ASBA, like for secondary market, is very much under discussion, but it is, as you can imagine, operationally complex, and therefore a lot of the devil lies in the detail, and we want to be absolutely sure that that process can happen seamlessly. So it is still with the working group, with all the stakeholders, and they're making pretty good progress. We will make progress on that, but it was not yet ready and baked for a board approval at this stage. तो ये थी सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच। बोर्ड की बैठक में जो फैसले लिए गए वो बता रही थी। मुख्य तौर पर तीन बड़ी बातें उन्होंने बताई। एक आईपीओ से जुड़ी हुई कि उसके वैल्यूएशन की जानकारी ली जाएगी। पहले 3 साल तक क्या वैल्यूएशन रहा था आईपीओ का, और आईपीओ के वैल्यूएशंस को लेकर जो सवाल उठ रहे थे शायद उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई है। दूसरा प्रावधान एमएफ से जुड़ा हुआ है, जिसमें चेयरपर्सन ने बताया कि म्यूचुअल फंड्स पर क्लैरिटी देने की उन लोगों ने कोशिश की है। कुछ एम्बिग्विटी लोग फील कर रहे थे, उसको दूर करने की कोशिश की गई है। और तीसरा एक फ्रेमवर्क की बात है क्लियरिंग के लिए, और उस पर भी उन्होंने सफाई दी। पढ़ते हैं खबरों में आगे। आज की बड़ी खबर, क्रेडिट पॉलिसी। आरबीआई ने लगातार चौथी बार दरें बढ़ाई हैं। क्रेडिट पॉलिसी में 0.5% रेपो रेट बढ़ाया गया है। वहीं ग्रोथ का अनुमान भी घटा दिया है आरबीआई ने। लेकिन गवर्नर ने आगे की अच्छी तस्वीर पेश की है। उन्होंने कहा है कि घरेलू इकोनॉमी मजबूत है। बेहतर क्रेडिट ग्रोथ को भी अच्छा सिग्नल बताया है। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों की तुलना में भारत के हालात थोड़े अच्छे हैं। While real GDP growth in the first quarter this year turned out to be lower than our expectations, nonetheless it was 13.5 and perhaps the highest among the major global economies. Real GDP growth in the first quarter, the late recovery in Kharif sowing and the comfortable reservoir levels that we have at present, improvement in capacity utilization, buoyant bank credit, and government's continued thrust on capital expenditure are expected to support aggregate demand and output in the second half of the current year. The recent correction in global commodity prices, including crude oil, if sustained, may ease cost pressures in the coming months. तो क्या इकोनॉमी में सब ठीक ठाक है? आज आवाज अड्डा पर इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और बात मार्केट की। आज 2 महीने के निचले स्तर से बाजार में बाउंस बैक देखा गया। सेंसेक्स 1017 पॉइंट चढ़कर 57,427 पर, निफ्टी 276 पॉइंट चढ़कर 17,094 पर बंद हुआ। बीएससी के सभी सेक्टर इंडेक्स में चौतरफा खरीदारी रही। बैंकिंग, मेटल, रियल्टी शेयरों में जोरदार तेजी देखी गई और ऑटो, फार्मा, आईटी शेयर भी बढ़त पर बंद हुए हैं। आज
और अब बात करते हैं टेलीकॉम जगत की। CNBC Awas and Salazar Techno Engineering present Telecom Update. टेलीकॉम सेक्टर के लिए और आम टेलीकॉम उपभोक्ता के लिए कल का दिन बड़ा होगा। 5G का इंतजार कल खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या आपके शहर में भी कल से शुरू हो जाएगी 5G की सेवा? और 5G आने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव होंगे, बता रहे हैं हमारे सहयोगी यतीन मोता। 5G सेवाओं का लाभ लेने का इंतजार हुआ खत्म। 1 अक्टूबर को ही पीएम मोदी 5G सेवाओं का लॉन्च करेंगे। ऑब्वियसली ये सिलेक्ट शहरों में अवेलेबल होगी और सभी के सभी महानगर जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई में ये 5G सेवाएं उपलब्ध होंगी। ऑब्वियसली ये फेज 1 है 5G सेवाओं का, तो काफ़ी सिलेक्टेड बड़े शहरों में ये सेवाएं अभी उपलब्ध होंगी। अगले 12 से 18 महीने में देश भर में 5G सेवाएं लॉन्च होगी। लेकिन अगर हम बात करें कौन से महानगर यहाँ जो है 5G सेवाओं का लाभ ले पाएंगी, उनमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता जैसे बड़े शहर शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं 5G की जो शुरुआत होने वाली है वो बड़े आपको सिटीज से होती हुई दिखाई देगी। ऑब्वियसली 5G का अगर हम एनालिसिस करें तो ये सेवाएं कैसी हमारी जिंदगी चेंज कर सकती है। सबसे पहले डाउनलोडिंग स्पीड या जो बफरिंग रेट है वो आपको बहुत इंप्रूवमेंट होता हुआ वहां दिखाई देगा। 5G सेवाएं जो है 4G और 3G के मुकाबले 50 गुना ज्यादा स्पीड पे चलती हैं। अगर हम बात करें तो महज कुछ सेकंड में ही आप बड़ी बड़ी मूवीज या वीडियो स्ट्रीमिंग को डाउनलोड कर पाएंगे। अगर हम दूसरी चीजों की बात करें जैसे वीडियो कॉलिंग, तो 4K क्वालिटी में यानी HD क्वालिटी में आप यहाँ वीडियो कॉलिंग कर पाएंगे। गेमिंग की जहां तक की बात है तो यहाँ हमको थोड़ा बहुत बफरिंग या डाउनलोड स्पीड का इशू आता है, लेकिन 5G में आप नॉन स्टॉप बढ़िया से बढ़िया गेमिंग का लुत्फ उठा पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें चुनिंदा सेक्टर्स की, तो हेल्थ केयर सेक्टर में 5G का बड़ा आपको योगदान आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि रोबोटिक्स के जरिए ऑपरेशन और हेल्थ केयर की सेवाएं आपको उपलब्ध हो पाएंगी। इसके अलावा 5G एनेबल्ड ड्रोन हो या दूसरी 5G रिलेटेड सर्विसेज हो यानी 5G एनेबल्ड ऐप्स हो, यहाँ भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से कंज्यूमर के बेनिफिट में ये जो है फायदा जाते हुए देखेंगे। तो देखते हैं किस हिसाब से पैन इंडिया बेसिस पे 5G सेवाएं लॉन्च होती हैं। टेलीकॉम कंपनी ने अपनी कमर कस ली है और बहुत जल्द आपको 5G सेवाएं उपलब्ध कराएंगी आपके शहर में टेलीकॉम कंपनियां। तो ये था 5G का प्रीव्यू और कल हो जाएगा लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल खुद इंडियन मोबाइल कांग्रेस में जाएंगे और वहीं से 5G सेवाओं के लॉन्च का ऐलान होगा। यहाँ मुकेश अंबानी, सुनील भारती मित्तल और कुमार मंगलम बिरला जैसे दिग्गज भी होंगे, कार्यक्रम में रहेंगे। तो देखिए आप भी इस कार्यक्रम को सीधा आवाज पर लाइव कल सुबह 10 बजे से लगातार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। पिछले दिनों शेयर बाजार में जो गिरावट हुई या इस तरह की जब भी गिरावट होती है तो आपको नुकसान होता है, लेकिन आप इस नुकसान की थोड़ी बहुत भरपाई टैक्स बचाकर कर सकते हैं। आखिर कैसे? लक्ष्मण रॉय ने बात की टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा से। कुछ दिनों से या फिर कहीं कुछ हफ्तों से मैं देख रहा हूं कि शेयर बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को आ रही है। तो गिरावट होती तो जाहिर तौर पर कई निवेशक हैं, कई ट्रेडर हैं, उनको नुकसान हो रहा होता है। तो आप पूछेंगे टैक्स गुरु का इससे क्या लेना देना है, तो बता दूं कि हमारी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा कुछ खास रिसर्च करके लाई हैं और इनका कहना है कि जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई कुछ हद तक आप टैक्स बचा कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं मुझे भी नहीं पता, गौरी से पूछा। तो गौरी कैसे करेंगे इसको? जी, इसका बहुत ही एक यूनिक तरीका है जो शायद ट्रेडर्स सोचते नहीं है कि हम ये ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर जैसे आपको किसी भी स्टॉक में लॉस हो रहा है तो आपको लगता है कि आपको लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करके रखना है और जब ये प्रॉफिट में आएगा तभी बेचना है, तो आप इसमें कुछ ट्विकिंग कर सकते हैं।
अभी जब आपको लॉस हो रहा है तो लॉस बुक कर लें। जैसे आज एक शेयर 500 रुपए का हो गया है, आपने 600 रुपए में लिया था, तो 100 रुपए का लॉस बुक करके 500 रुपए में उसको बेच के आज ही की डेट में उसको दोबारा खरीद लें तो आपका 100 रुपए का लॉस हो गया बुक। अब इस लॉस को आपका जो प्रॉफिट हुआ है किसी और शेयर में या साल में किसी और शेयर में आपका प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट से ये माइनस हो जाएगा और आपको सिर्फ बैलेंस पे टैक्स देना है। तो कई बार लॉसेस भी अच्छे होते हैं अगर आप उसको तरीके से बुक करें, समझदारी से बुक करें और उसको आप एडजस्ट कर लें प्रॉफिट के साथ। लेकिन इसमें एक सवाल मेरा ये है कि मान लिया हमने लॉस बुक कर लिया लेकिन प्रॉफिट मेरा हुआ ही नहीं इस साल, तो वो लॉस बुक किया उसका कोई फायदा है? बिल्कुल बिल्कुल, तब भी फायदा है क्योंकि इस साल आपको प्रॉफिट नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि आगे के सालों में भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये जो लॉस आपने इस साल बुक किया है ये अगले 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 8 साल तक? 8 साल तक। तो 8 साल तक आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े रहते हैं, मार्केट गिरेगा नहीं तो बिल्कुल आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो 8 साल तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल काफी पते की बात है कि अगर शेयर बाजार के निवेशक आप हैं और तो इस गिरावट से घबराए ना, इस गिरावट में भी अपना कहते हैं ना आपदा में अवसर ढूंढने, तो इस अवसर ढूंढिए और इसमें आप लॉस बुक करिए। लॉस को जैसा गौरी ने कहा कि 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 8 साल तक कभी भी आपको मुनाफा होगा तो उस नुकसान को उस मुनाफे के एवज में उसकी भरपाई कर सकते हैं और इस तरह से आप अपना अच्छा खासा टैक्स बचा सकते हैं। इधर पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस में मिला लिया है। जपोरिजिया, डोनेस्क, लुहांस्क और खेरसॉन को अपने हिस्से में मिला लिया है। डिटेल दे रहे हैं संजय सूरी। तो जैसे कि संकेत मिल रहे थे, पुतिन ने अब घोषणा कर दी है कि यूक्रेन के 4 इलाके अब रूस का एक हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने कहा रूस के अब 4 नए हिस्से हैं, लेकिन इतना कहने से समस्या हल नहीं होती। यूं कहिए समस्या ने एक नया रूप लिया, एक नई समस्या उठ खड़ी। कई सवाल उठते हैं इस घोषणा को लेकर। पहले तो ये कि उनमें से जैसे आप माने कि एक जो है इलाका है जो वो कहते हैं अब रूस का हिस्सा बन गया है, ज़ैपोरिजिया। ज़ैपोरिजिया जो है, जो शहर है, अभी तक यूक्रेन के कब्जे में है। वहाँ का मेयर यूक्रेनियन है, रशिया के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहा है। बाकी आसपास के इलाके जो है वो रूसी फौज के हाथ में है। दूसरी ओर देखें डोनेस्क रिपब्लिक, वहाँ पर लाइमैन इलाका है, उसको यूक्रेनियन फोर्सेस ने घेरा हुआ है। रूस के जो है सिपाही वहाँ से भाग रहे हैं। तो और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।